बढ़ा के चलो एक मिनट बेटा ना सामने ये देखे बच्चा एक मिनट साथ बच्चे तो साथ रहो दोनों बेटे साथ आ जाओ तो साइड जो बनाओ तो साइड जो बनाओ तो साइड जो बनाना जरा मैंने तो साइड पे हट के पकड़ा Miss England, thank you so much. Give her a huge round of applause one more time. Sasa torto. एक में शासा में. Thank you so much, audience. Thank you so much, audience. Have you seen? Ladies and gentlemen. So, first of all, I would like to thank you all for having me here today and speaking with yourselves. I think it's amazing to see all of you so interested in the environment and topics, and also getting involved within education, which is something that I really like to get involved with within schools and communities. So it's a real pleasure to be able to speak with yourselves today. So I just want to start off by talking a little bit about some of the organisations that I work with. So the first organisation is WASUP, which we mentioned, which is World Against Single-Use Plastics. Now here at WASUP we have 4 main principles. But these principles are mainly just speaking to people about dangers of plastics, which I hope that I can do with you all soon. Secondly is education, and I think being in a school setting, that is very important. And self-education, because I'm still learning, I'm still young myself, so I'd like to learn from you as well of what you know about plastics. Then we've got litter picking, and I hope that I can do this in Gujarat with maybe some of yourselves or some friends within the community of Gujarat. And lastly is just getting government involved and making a change in our world which we want to see. Now I'd like to just tell you a little bit of a story, if that's okay. So I want to speak a little bit about plastics because I think it's very important that we can all make the difference as individual people. And our world needs us as stewards to represent it, to look after it, and really bring peace to the world. And I think we can do this through simple steps, through plastics. So for example, if I had a plastic bottle, just like on the table here, this plastic bottle, if I was to go and chuck this into the water, and that water took the plastic bottle away, that plastic bottle will actually end up in a big ocean. Now, what would happen with this plastic bottle is that the ocean would sink it to the bottom of the ground, and then the animals would eat it and think it's a nice fish to eat. But actually, it's plastic. And so
it will die because of the plastic that it's eaten. So we don't want that to happen. Now, what we do want to happen is we want a community to come together and start picking up litter from your streets and waterways if possible, and create a community where we can all just be clean, reuse or reduce the amount of plastic that you have, and hopefully that should make a big impact on the world. And with you doing that, doing simple steps such as reusing a water bottle, for example, then we can make a difference to our world. Now, that's just briefly what I wanted to talk about, and thank you so much for having me here again, and I'm happy to answer any questions if you have any questions for me in the meantime. Now, we also have this book called The Story of the Three Plastic Bottles, and this is a book that our founder, Professor Gatchard, created. The purpose of this book is to really go into schools and educate people like yourselves about plastic waste. So hopefully, when you are all older, and I'm older, we can create a world which is plastic free. So, Rabi Ejaz, the Chief Ambassador for Pakistan for WhatsUp, has created this book in Urdu, so hopefully it's a bit more local for you, and we are wanting to give you a few books on behalf of the WhatsUp group as well here in Pakistan. So thank you so much for listening to me, and if you've got any questions, I'm more than happy to answer them as much as possible. So I'm hoping these books will be very interesting for you. Thank you. Assalamualaikum, my name is Amna. My question is that what are the types of recycling? Types of recycling. It's a very good question. So there's lots of different types of recycling that we could go and talk about for hours. But the types that I'm talking about is when we turn a bottle back into a bottle, this is called closed loop recycling. Now what this is where the product is being recycled, but it stays into the same product again. So that is one type of recycling. The second type would be open and you turn it into a seat that you sat on. That would be the different type of recycling. So the one thing I would say to take away is there are many types, but it's the purpose that you get out of it is the important purpose. And whatever that plastic can be useful for, that is the main issue, and that it's not ending up on our streets. So I hope that makes sense to you. What are the advantages of the green line? The green line. There are lots of different advantages of green plastics and also green environments as well. For example, let's go for a park. If your park isn't full of plastic, then we've got better mental health. We've got better health problems, you know. People are coming up with a new mental health condition called solastalgia. Now, no one's ever heard of this before, and it's something that's coming up. And basically, this is a mental health problem due to the effects of plastic waste and climate change. So if we get into green spaces, which are completely free of litter, will be better for our environments because they aren't being killed. It'll be better for us because we won't be eating the plastic, and also it'll be better for everyone's health. So I hope that makes sense. No worries. Assalamualaikum. My name is Hassan Farhan. My question is that how did you develop your interest in this field? How did you develop your interest in this field? Brilliant. So that's a great question. Since being young, I've always had an interest in the environment and social justice issues as well. I think I've always been interested, but I've never had the voice to speak about it. When I was 15, I entered the Miss England competition, and throughout that time I got to develop my knowledge, my strengths, and also what I can do to make a difference. And I joined up with the WhatsUp team through Miss England, and I had the opportunity to learn, take education,
and also bring this forward into people such as yourselves in different countries. And now I'm 17 and I have this opportunity to speak to the world about plastics and different issues facing society. And this has really boosted my interest in plastics, and I hope it boosts yours as well. And hopefully we can all make a difference, because one thing I want to give to everyone, we are protectors of our planet. So we need to protect it for generations to come. So thank you for your question. Thank you. My highly honored guests, staff and students, Assalamu alaikum. Today I feel extremely honored to welcome Ms. Jennifer Ellen Carlos and Mr. and Mrs. Dr. Ijaz Bashir and our other respected guests to my institution, the educator, but not my institution, but your institution as well, the Educator Baradari Campus, Gujarat. My worthy audience, I feel special pleasure to introduce my today's chief guest, Ms. Jennifer Ellen Carlos, who is visiting Pakistan, especially Gujarat, as the Chief International Ambassador for WASAP. And you guys might think that what WASAP actually is. WASAP stands for World Against Single-Use Plastic. This organization was founded by Professor Gattard Obi in 2017. It is run by hundreds of volunteers in the United Kingdom and abroad, including Pakistan and India. It is a global effort with huge health and other benefits, having a purpose to make this world a safer, better place. Dear team members, today's chief guest, Ms. Jennifer Ellen, has an in-depth knowledge on plastic and waste material. She has successfully coordinated with more than 20 countries worldwide, educating different communities how to make this planet Earth a more pleasant, healthier and better place to live. Miss Jennifer Ellen has won a number of awards. Miss England, WASAP Miss England Finalist 2021, Beauty and Purpose Award winner, Miss North Yorkshire Charity Queen. My dear students, among this long tale of achievements, the most inspiring thing about our much esteemed chief guest is the lofty purpose she has chosen. She has devoted her life to spread awareness and knowledge of the most crucial issues like plastic pollution, climate change, planetary health and equality. Honorable guests, I'm much grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that Baradari Campus was not founded just as an educational institution, but an influential organization, an effective movement whose every single student, teacher and parent will become an ambassador for peace, progress and priority. May Allah subhanahu wa ta'ala help us all in achieving this mission. Ameen. आपको सिखाना है आज, राइट? तो अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, जो कुछ जेनिफर ने कहा है वो सारे में ट्रांसलेट कर दिया। सो सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या है? प्लास्टिक बॉटल, राइट? प्लास्टिक बॉटल। और अभी यहाँ पे भी हमने क्या देखा है? प्लास्टिक बॉटल। इसका क्या मतलब है कि इतनी कॉमन इस्तेमाल होता है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हम इसको रियलाइज ही नहीं करते कि ये एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, राइट? फिर इसी तरह ये क्या चीज़ है? प्लास्टिक के चम्मच और कांटे, राइट? और ये इनको क्या कहते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक। ये सब कुछ जो है, ये प्लास्टिक बैग, ये स्ट्रॉ, ये रैपर, ये क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक। और WASAP का क्या मतलब है? वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। यानी कि हमारी कोशिश किस चीज़ के खिलाफ? सिंगल यूज़ प्लास्टिक, यानी कि जो एक बार इस्तेमाल होता है। जैसे कि स्ट्रॉ है, ये पानी हमने पी लिया, इसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। इनसे हमने खा पी लिया तो इसके बाद फेंक देते हैं। ये जो प्लास्टिक बैग है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। और ये कितना इस्तेमाल होता है सबको पता है, राइट? ऐसा ही है ना कि कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर ये प्लास्टिक बैग नहीं आया होगा? और दिन में कभी कभी 50 बार आ रहा होता है, डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, राइट? और कभी कभी एक ही चीज़ को उन्होंने 3 प्लास्टिक शॉपरों के अंदर डाला होता है। ऐसा ही है ना? तो ये आज हम आपको आगाही देना चाहते हैं इस बारे में कि ये सारी चीज़ें कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। अब क्या है, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, हमारी गलियों में आप चले जाएं
तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रीट्स में रहते होंगे, जो कुछ तंगलियाँ हैं, कुछ खुली, आपने देखा होगा ना वहाँ पे साइड पे नालियाँ गुजर रही होती हैं, राइट, सीवरेज होती है सारी, वो सारी की सारी इन चीज़ों ने बंद की होती है। और अक्सर क्या होता है, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम जिन जगहों पे गए हैं तो वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने मेरे घर के आगे फेंका, इसने नाली में फेंका। तो ये चीज़ है कि ये हमने आगाही देनी आपको कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से इन आदतों को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों चेंज करना चाहते हैं इस आदत को, क्यों हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। K2 किसने देखा हुआ? K2 माउंटेन किसने देखा हुआ? तस्वीरों में ही किसने देखा हुआ? पता है ना आपको K2? K2 जो है वो क्या है, दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट जो है वो माउंटेन है, राइट? ऐसा ही है कि नहीं? और अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में एक K2 नहीं 3 K2 हैं, एक असल K2 है और उसके अलावा 2 K2 ऐसे हैं जो हमने इन चीज़ों से बनाए हैं। 2 K2 माउंटेन के बराबर इसमें जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर प्लास्टिक का वेस्ट पड़ा हुआ। आप इमेजिन करें, K2 दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, दूसरी। आप चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो है वो हम तीसरी चोटी इकट्ठी करें? नहीं, राइट? हम चाहेंगे कि हम इस अपने मुल्क को और इस दुनिया को जो है बेहतर करें, उसमें से हम जो है ये प्लास्टिक का गन ये ख़त्म करें। और इससे कैसे ख़त्म हो सकता है? आप प्लास्टिक की बोतल की जगह अपनी एक बोतल खरीदें, ये एक दफ़ा इस्तेमाल होती है ना, जो दूसरी बोतल है वो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीफिल करते हैं फिर पीते हैं, राइट? वसत जो है इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें, दूसरा है रीयूज़, सबसे पहले रिफ्यूज़ कि इसको इस्तेमाल करने से मना करें, ठीक है? जब आपके पास आपको कोई प्लास्टिक बोतल दे, प्लास्टिक बैग दे, कोई भी चीज़ दे, आप मना करें, आप ये हमें नहीं चाहिए। फिर जो है दूसरी दफ़ा क्या है कि रीयूज़ करें, जो भी चीज़ आपके पास आती है एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंके ना, ठीक है? आप चाहते हैं कि पाकिस्तान गंदा हो? कौन चाहता है? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। हम चाहते हैं पाकिस्तान साफ हो, और इसी तरह हम चाहते हैं पूरी दुनिया जो है उसको हम साफ करें। तो आज से हम ये अहद करेंगे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमारा यहाँ आने का मकसद ही ये है, आपको बताना कि इसकी वजह से कितनी बीमारियाँ फैल रही हैं। नालियाँ बंद होती हैं तो क्या होता है? मच्छर पैदा होता है, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, वो बीमारियाँ लेकर आते हैं। इसी तरह जो है जनरली जो है प्लास्टिक हमारी खानों में आ चुके हैं। आप अगर आप इसमें पानी पीते हैं और इसको फेंकते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होता, ये 500 से 1000 साल तक इस दुनिया पे ही पड़ा रहता है। बाकी चीज़ें गल सड़ जाती हैं, राइट? ये नहीं गलता, ये 500 साल तक। किसकी इतनी एज है 500 साल तक कौन जिंदा रहता है? तो इसका मतलब है कि हम अपनी अगली आने वाले जनरेशन के लिए भी, यानी जो आपके बच्चे होंगे, जो आप लोगों के बच्चे होंगे, ठीक है? अभी आपने सोचा भी नहीं इस बारे में कि शादी होगी, बच्चे होंगे, राइट? लेकिन आपके बच्चे जो होंगे, उनके बच्चे होंगे और उनके भी बच्चे होंगे, वो तक इस प्लास्टिक बोतल को देख सकते हैं। ये इतना नुकसानदेह कि ख़त्म नहीं होता, 1000 साल तक इधर ही पड़ा रहता है। इसलिए आज से हमने ये वादा करना है कि हमने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी या हमने कम करनी है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, आप घर जाएं, घर वालों को बताएं कि कितनी नुकसानदेह है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? तो आप वादा करते हैं? गुड। तो आज से हमने ये प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना, आज से हमने ये प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना। गुड, ज़बरदस्त। ओके, सो व्हाट्सएप जो है इसकी बहुत खूबसूरत सी ये बुक है, इन्होंने ये बनाई है। इसमें ये जो 3 प्लास्टिक बॉटल्स की स्टोरी है, उनकी जर्नी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। इसको हमने उर्दू में भी ट्रांसलेट कर लिया है, तो इंशाल्लाह ये अभी हम 5 बुक्स जो है आपकी लाइब्रेरी में भी देंगे, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? स्कूल में इंशाल्लाह। तो अब हमारा व्हाट्सएप का साइन है W, ठीक है? क्या है? ऐसे करें मेरे साथ, इनको ज्वाइन करें, ज्वाइन। क्या है? व्हाट्सएप, ठीक है? इसको हम कहते हैं लेट्स गेट व्हाट्सएप डन, कि अब हम सारे जो हैं ऊपर के सारे हाथ अपने, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है अब आप लोग आज से सब कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और बाकी लोगों को भी समझाएंगे कि अब हमने प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। तो बेटा आगे चले, आगे चलो।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये जो हम रिसाइकल की बार बार बात करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जिस किस्म की चीज़ है ना, बस ये प्लास्टिक के शॉपर हैं या कागज़ है, इनको वो एक दफ़ा उसको गला के इसको गर्म करके कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर ये इनको मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद इनकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद इसमें अंदर कलर ऐड किया जाता है और वो कलर ऐड करके फिर दोबारा से वो मशीनों के अंदर नई चीज़ बनाई जाती है। जिस तरह एक दफ़ा ये बोतल बनती है, इस बोतल को जब ये ज़ाया हो जाती है, बाहर गिर जाती है, तो वो उसको उठा के दोबारा धो के इसको फिर गला के छोटा सा इसका एक दाना बनता है। उस दाने से फिर दोबारा आगे जैसे ये डस्टबिन पड़े हैं ये बनते हैं। हमारा मकसद ये है कि ये चीज़ें जितनी भी हैं, बजाय इसके कि इनको हम नालियों में फेंकें, इनको कूड़े के ढेर पे फेंकें और ये गंदी हों, उसको गंदा होने से बचाने के लिए हम इनको अलग 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 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक में अभी बाकी ये राबिया आपको बताएंगी कि हम इसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं ताकि आगे प्लांटों में जाके इनको ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो और ये साफ़ सुथरी चीज़ बने। थैंक यू। अच्छा, इसके ऊपर लिखा तो फूड ट्रैश है, तो हम फूड ट्रैश तो नहीं ला सकते, तो वो नहीं हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, 2-3 बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, और वो जो है वो हम पेपर के लिए रखेंगे। ठीक है, पेपर, एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और 2-3 बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया। चलिए आप इसे 2 पहले चलो। अब आपने दोनों ने जो मैंने जैसे बताया है, आपने उधर से चीज़ उठानी है और उनके अंदर डालना है। पहला वाला पेपर का है, ये वाला एक बार इस्तेमाल होने वाला, ये बार 2-3 दफ़ा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक। चलिए परफेक्ट, शाबाश। अब प्लास्टिक ये क्या है, एक बार इस्तेमाल होने वाला है कि 2-3 बार इस्तेमाल होने वाला है? सोचो। 1-2 दफ़ा। हाँ, हम पाकिस्तानी 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 1 दफ़ा इस्तेमाल होने वाला है। चलिए गुड। आप भी उठाओ ना, बॉटल उठाओ। ये किस चीज़ के लिए? ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल होने वाली है? हाँ, अब ये है कि जब इस तरह की चीज़ को जब हम ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। टॉक्सिन्स मीन के जहरीले मादे जो होते हैं ना, तो आप इसको दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करते हो, तीसरी दफ़ा करते हो तो ये जहरीली हो जाती है। इसलिए इसको हम सिंगल यूज़ कहते हैं, यानी एक ही बार इस्तेमाल होने वाली है, ये एक बार इस्तेमाल होने वाली है। अब ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। अब ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कौन सी है, जो 2-3 दफ़ा हो सकती है? ये प्लास्टिक, स्टील। देखिए, अब ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये है स्टील। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। हम सबके घरों में ये इस्तेमाल होता है, स्टील के ग्लास या प्लेटें या चमचे। ठीक है, जो ग्लास है, ग्लास की प्लेटें, ग्लास की चमचे, ग्लास होते हैं पानी पीने वाले, वो सारे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो जब टूट जाते हैं तो वो भी ज़ाया हो जाते हैं। उनको रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे चाहिए। तो इसका क्या है, ये ऐसी चीज़ है जो ना टूटती है ना ज़ाया होती है, इसको बड़े अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये हेल्दी भी रहती है। राइट, तो ये है स्टील। ठीक है, तो हमें घरों में अब ये कोशिश करनी है कि स्टील और स्टील के ग्लास, स्टील की प्लेटें, और ये हम कोशिश करें यूज़ करें। इसको भी हम दे रखते हैं। और शॉपर्स बार बार इस्तेमाल होने वाली कौन सी है? बार बार इस्तेमाल हो, स्टील 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 एक दफ़ा। चल, आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। जी, अब आप जी, अच्छा। चलो, अब आपने वही करना है जो इनको मैंने बताया, पेपर, प्लास्टिक, एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और 2-3 दफ़ा इस्तेमाल। उन्होंने फोटो से करवाने ना परफेक्ट। मेरी बेटी छोटी ये एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाला,
पक्की बात है? कंफर्म? यस। चलिए ये बताएं, एक दफा। घर में कितनी दफ़ा इस्तेमाल होता है? परफेक्ट। जो स्ट्रॉ हैं, स्ट्रॉ भी बहुत हैजरस होते हैं, तो ये भी एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। ये क्या है? स्टील। और ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? 2-3 दफा। स्टील को हम 2-3 दफ़ा। आप मुझे बताओ, आपके घर में ये कितने अरसे से होंगे चमचे? आपके बचपन से होंगे, राइट? कि ये ऐसी चीज़ है जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकती है, ये हर दफ़ा इस्तेमाल, आप काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये सिरप की डब्बी है। ये जो है सिरप, सिरप की बॉटल है, ठीक है। तो आई थिंक डब्बी तो वो नहीं होती पेपर की, ठीक है। तो ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल होती है? एक दफ़ा। यानी कि ये भी जब इस्तेमाल हो जाती है, इसके अंदर सिर्फ लिक्विड ख़त्म हो जाता है, दवाई ख़त्म हो जाती है, तो फिर इसको फेंकना पड़ता है। तो ये भी रिसाइकिल होना थोड़ा मुश्किल है इसके लिए। चलिए, और ये वाला जो आपने पकड़ा है ये? अच्छा, अब ये बॉटल जो है, ये आपके ख्याल से कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है? एक दफ़ा? 4 दफ़ा? ये ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो बार बार, राइट? कि इसके अंदर अक्सर आप घरों में तेल वगैरह डाल लेते हो, बालों में लगाने वाला, या इस तरह की चीज़ें, ऐसा ही होता है ना। तो ये है कि हमें चाहिए कि जो चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं, हम उनको इस्तेमाल करें। ये टॉक्सिक नहीं है, जो पानी पीने वाली, क्योंकि उसको हम पी रहे हैं इसलिए वो नुकसानदेह है, तो ये नुकसानदेह नहीं है। ये किस में डालोगे आप? हाँ, परफेक्ट, ज़बरदस्त। चलिए, अब आप ये क्या चीज़ है? इसके अंदर कुछ चीज़ आई थी, प्लास्टिक का रैपर है, राइट? ये, और ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल होगा? एक दफा। राइट, जब इसमें चीज़ निकाल लेंगे तो इसको हम फेंक देते हैं, ठीक है? तो ये भी कचरे में चला जाता है। बेटा मास्क नीचे कर दो। और ये कितनी दफ़ा? बहुत दफा। तो इट मीन्स कि बार बार इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये दिखाएं, ये इनको दिखाएं ज़रा सबको। ये क्या चीज़ है जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं? क्या चीज़ है? चॉकलेट के रैपर हैं, चिप्स के रैपर, बिस्किट के। ये ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त खा रहे होते हो, स्कूल में भी, कैंटीन में खा रहे होते हो, ऐसा ही है ना? तो अब क्या है, अब ये चीज़ें बिल्कुल रिसाइकिल नहीं हो सकती हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है इनको रिसाइकिल करना, क्योंकि ये अंदर इनके थोड़ी गंदी हो गई होती है, ठीक है? इनके अंदर चीज़ लगी होती है ना कोई, तो ये रिसाइकिल नहीं होती। तो इसका अब क्या तरीका है? जैसे हमने बात की रिफ्यूज़, कि कम से कम खाएं इन चीज़ों को, हेल्दी डाइट खाएं। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, मैं खुद भी बहुत मुश्किल से खाती हूँ लेकिन ये है कि ये कोशिश करें आप। आज हम यही चाहते हैं आपसे कि थोड़ा थोड़ा कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को कम कर दें, ठीक है? क्योंकि ये रिसाइकिल नहीं होगी, ये कचरे में ही जा रही है और ये पाकिस्तान के अंदर पड़ी ही रहेगी हमेशा के लिए। तो इसलिए इनको हमने कम खाना है। क्या करना है इनको? हमने कम खाना है। थोड़ा और ऊंचे जोर से बोले, क्या करना है हमने? एग्जैक्टली, जितनी कोशिश कर सकते हो ना आप, इनको कम खाओ, ठीक है? ये किस में जाएंगे? ये किस में जाएगी? वो क्या, वो तो पेपर है। किस में जाएगी? आपको ये पेपर लग रहा है? देखो, अब यही चीज़ है, ये हम समझते हैं ये पेपर है, ये गल सड़ जाएगा, ये एक्चुअल में प्लास्टिक है। ये सारी की सारी चीज़ें प्लास्टिक हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं। एक दफ़ा हो गई तो उसके बाद ख़त्म, ये कचरे में चली जाएगी। तो इसको कहाँ डालेंगे हम? परफेक्ट, ज़बरदस्त। बस 2 चीज़ें हो रही हैं। ये बोगी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदर, हर सहाबिये रसूल, हर सहाबिये रसूल, ताजदारे खत्म नबूवत। Thank you, beta, for your discipline, for your cooperation. Have a seat.
came in Baradari campus in Pakistan, in Gujarat, and it was a very special moment for all of us that you joined us. We are really thankful to you that you made this day so memorable for us. आपका कितना स्टे है, हम आपको फ्रेम करवा के दें। यहाँ ये रोल कटिंग